ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ دن ڈھلنے کے قریب تھا۔ آسمان پر ہلکے نارنجی اور گلابی رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ کھڑکی سے آتی روشنی نے کمرے کی سفید دیواروں پر سنہری چمک بکھیر رکھی تھی۔ مریم اپنی ماں زیب النساء بیگم کی گود میں سر رکھے آرام سے لیٹی ہوئی تھی۔ کمرہ سادہ مگر صاف ستھرا تھا۔ بیچوں بیچ ایک پرانی سی لکڑی کی الماری، کونے میں رکھا جھولا اور سفید پردوں سے ڈھکا چھوٹا سا دریچہ تھا۔ سب کچھ اپنے اندر سکون اور سادگی سموئے ہوئے تھا۔ زیب النساء بیگم نرم انگلیوں سے مریم کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، جیسے ہر سلجھتی لٹ کے ساتھ اس کے بچپن کی کوئی یاد واپس لا رہی ہوں۔ وہ کچھ نہیں بول رہی تھی مگر ان کے چہرے پر عجیب سا سکوت تھا، وقت جیسے تھم گیا ہو۔ مریم نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے ماں کو دیکھا۔ ان آنکھوں میں سوال، تجسس اور کچھ نہ سمجھ آنے والا دکھ تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، امی، آپ نے کبھی بابا کے خاندان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ جب بھی پوچھتی ہوں ڈانٹ کر چپ کروا دیتی ہیں۔ آج آپ کا موڈ بھی اچھا لگ رہا ہے، کیا آپ مجھے بتائیں گی بابا کے خاندان والے کہاں ہیں؟ میرے ددیال میں کوئی بھی نہیں ہے کیا؟ وہ بے حد معصومیت سے بولی تھی۔ زیب النساء بیگم کا ہاتھ ایک لمحے کو رک گیا، جیسے اس سوال نے ان کی رگوں میں دوڑتا خون جما دیا ہو۔ ان کا چہرہ جو ابھی پرسکون دکھائی دے رہا تھا، اچانک لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ لب تھر تھرا رہے تھے، آنکھیں کہیں دور دیکھ رہی تھی، جہاں یادیں چھپی بیٹھی تھیں، زخموں کی شکل میں۔ جو کچھ انہوں نے برداشت کیا تھا، لمحہ بھر میں کسی فلم کی مانند ان کی آنکھوں کے سامنے لہرا گیا۔ وہ مزید بولی، امی بتائیں، میں آپ سے کوئی سوال کر رہی ہوں۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنی جانب مخاطب کرتے بولی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اس کی ماں کس درد میں پہنچ گئی ہے۔ وہ مزید کچھ کہتی اچانک ان کی آنکھوں میں خون اترا اور وہ غصے میں دھاڑتے ہوئے بولی، خاموش ہو جاؤ مریم، چھوٹی بچی ہو جو تم ایک ہی سوال کو بار بار دہراتی رہتی ہو۔ حالانکہ تمہیں معلوم ہے مجھے نہیں پسند اس ٹاپک پر بات کرنا، پھر ایک ہی بات کو مزید گھسیٹنا تمہیں پسند ہے کیا؟ اچانک وہ سخت لہجے میں بولی، جیسے کسی نے ان کی روح کو چیر دیا ہو۔ تم میں کوئی لحاظ مروت نہیں ہے؟ جب معلوم ہے تمہیں کہ مجھے نہیں پسند ان لوگوں کا ذکر بھی کرنا، پھر ایک ہی بات کو بار بار گھسیٹ کر تمہیں حاصل کیا ہوتا ہے؟ کیا میں تمہیں کسی چیز کی کمی دیتی ہوں؟ ہر آسائش تمہارے پاس موجود ہے، پھر بھی تمہاری ایک ہی گردان میری سمجھ سے باہر ہے۔ خدا کے واسطے اب دوبارہ یہ سوال مت کرنا۔ وہ یکدم پھٹ پڑی تھی۔ کتنی بار تمہیں منع کیا ہے یہ سوال مجھ سے مت پوچھا کرو۔ کیا ملتا ہے تمہیں میرے زخموں کو کرید کر؟ کیوں چاہتی ہو کہ میں ماضی کی اس گھاٹی میں پھر سے اتروں جہاں ہر طرف اندھیرے ہیں؟ اچھا نہیں لگتا کہ تمہاری ماں خاموش ہے، خوش ہے؟ وہ بولنے پر آئیں تو لمحے میں مریم کو شرمندہ کر دیا۔ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، آج تم نے یہ سوال مجھ سے پوچھ لیا ہے، اگر آئندہ تم نے یہ سوال پوچھنے کی زحمت کی تو میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ بس اب بہت ہو چکا، میں مزید برداشت نہیں کروں گی اس سوال کو۔ تم نے میری زندگی عذاب کر دی ہے۔ جتنا تمہیں پیار دو، جتنی محبت دو، تمہیں راس ہی نہیں آتی۔ میں بھی انسان ہوں مریم، کب تک تمہارے ان سوالوں سے بھاگتی رہوں گی؟ وہ بولنے پر آئیں تو آج خاموش نہیں ہوئی تھی، کیونکہ جانتی تھی اگر ایک دفعہ ہی اسے سخت لہجے میں نہ سمجھایا تو وہ بار بار پوچھے گی، اور ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ہر بار اس کو سمجھاتی۔ انہیں معلوم تھا ہر بچے کی طرح ان کی بیٹی کی بھی خواہش تھی کہ وہ اپنے باپ کو جانے، ان کے بارے میں پتہ کرے، اپنے ددیال سے ملے، لیکن یہ سب اس کی قسمت میں کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ مریم گھبرا کر تھوڑا سا سنبھلی مگر دل میں کچھ ٹوٹا تو ضرور۔ اس نے دھیرے سے پھر کہا، امی ایک بار، بس ایک بار بتا دے، میں جاننا چاہتی ہوں، کیا میں صرف آپ کی بیٹی ہوں؟ کیا میرے بابا کا کوئی وجود نہیں رہا؟ کوئی چہرہ، کوئی رشتہ، کوئی یاد؟ کچھ تو ہوگا۔ آپ نے کبھی مجھے کوئی تصویر نہیں دکھائی۔ میں مانتی ہوں میں ایک بات بار بار پوچھتی ہوں، لیکن میرا حق ہے امی۔ وہ ان کی ڈانٹ کے بعد بھی باز نہیں آئی تھی۔ کب تک خود کو روکتی؟ وہ بھی انسان تھی۔ راز بھری زندگی اسے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ ان کے جھاڑنے پر بھی وہ خاموش نہیں رہ پائی تھی۔
ज़ेबुन्निसा बेगम की आंखों में नमी तैरने लगी। लबों ने कपकपाते हुए जैसे कुछ कहना चाहा, मगर ज़ब्त ने उन्हें फिर रोक दिया। वो अचानक मरियम का सर अपनी गोद से अलग करते उठी और सख्ती से बोली, मैंने कहा ना बस करो, मत खोदो वो माजी जिसे मैं दफना चुकी हूं। कुछ चीजें जाननी जरूरी नहीं होती मरियम, खामोश रहना सीखो। इस बार वो कदरे धीमे लहजे में बोली थी। ये कहकर वो तेजी से पलटी और कदमों की आहट के साथ कमरे से निकल गई। दरवाजा धीरे से बंद हुआ, मगर अंदर मरियम की आंखों में कई सवालों के दर खुल गए थे। कमरे में छाई खामोशी अब सवालों से बोझल हो चुकी थी। न जाने क्यों उसे अब सब कुछ राज लग रहा था। जिस तरह का रद्द-ए-अमल आज उन्होंने दिया था, कुछ था जो वो छुपा रही थी, लेकिन क्या? आज तक वो इस राज से पर्दा न हटा पाई। जब भी वो अपनी माँ से सवाल करती थी, वो हमेशा इसी तरह गुस्सा किया करती थी, और आज भी उनका यही अंदाज था। मगर आज और दिनों की मुनासबत वो हद से ज्यादा गुस्सा हो गई थी, और ये बात उसको ठुठकने पर मजबूर कर रही थी। हवेली का मर्दान खाना पुरशिकवा शानो शौकत का आईनादार था। ऊंची छतों पर लकड़ी के नक्शो निगार, दीवारों पर पुराने आबाओ अजदाद की तस्वीर, और बीचों बीच सुर्खों स्याह कालीन बिछा था, जिसके वस्त में एक बड़ी भारी भरकम कुर्सी रखी गई थी। सरबराही नशिस्त जो सिर्फ फुरकान खानजादा की पहचान थी। उनके चेहरे पर उम्र के नकूश नुमाया थे, मगर आंखों में आज भी वही जलाल और रोब और दबदबा था जिससे बड़े बड़े झुक जाया करते थे। वो गांव के सरदार थे, पूरा गांव उनके हुक्म पर चलता था। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई उनके आगे जबान चला सके। वो इतने सख्त गिर शख्स थे। उनके दाएं जानिब जमान खानजादा, मजबूत जिस्म का मालिक, मगर चेहरे पर झिझक का रंग लिए नजरें झुकाए बैठे थे। बाएं तरफ फैसल खानजादा, जो अपनी उम्र से ज्यादा संजीदा दिखते थे, चुपचाप माहौल का जायजा ले रहे थे। फुरकान साहब ने सर्द निगाहों से जमान को देखा। उनकी आवाज भारी, गूंजदार और बेरहम थी। शाहिद के घर वालों का कुछ पता चला तुम्हें? एक काम दिया था तुम्हें जमान। 15 साल हो गए। 15 साल। क्या अब भी मैं तुम्हारी तरफ से सिर्फ मायूसी ही समझूं? और कितना मुझे इंतजार करना पड़ेगा? किस तरह तुमने तलाश जारी रखी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हद करते हो तुम। इतना वक्त कैसे लगता है? ना तुम किसी घर वाले को इस तलाश में शामिल करते हो, ना किसी मुलाजिम को। अकेले तुमसे हो कुछ नहीं रहा। आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, मुझे क्लियर बता दो। जमान ने नजरें उठाई, मगर अल्फाज ढूंढने में कुछ लम्हे लगे। बाबा साहब, मैंने हर दर खटखटाया है, हर शहर, हर गांव, हर वो जगह जहां उनका नाम तक सुना गया हो। शाहिद के खानदान का कहीं कोई निशान नहीं मिल रहा। जमीन खा गई या आसमान निकल गया, समझ नहीं आता। मैं सच बोल रहा हूं। लेकिन एक लम्हे के लिए उनकी जबान लड़खड़ाई थी, आंखों में झिझक नुमाया हुई थी। कुछ था जो वो छुपा रहे थे, और ये चीज फुरकान साहब को महसूस हो गई थी। लेकिन वो खामोश रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन अंदर एक गहरा मंसूबा लम्हे में तैयार कर लिया। अपने बेटे की दरिया दिली से तो वो बखूबी वाकिफ थे। फुरकान खानजादा ने गहरी सांस ली, जैसे अपने अंदर फिरकाती आग को जबरदस्ती काबू में ला रहे हों। उनका लहजा अब मजीद सख्त हो गया था। जमान, वो लड़की शाहिद की बेटी मेरे बड़े पोते की मंग है। मंग निकाह की हैसियत रखती है, और तुम जानते हो इस बात को। मुझे वो लड़की जिंदा सलामत चाहिए। मैं अपनी आंखें बंद होने से पहले अपने पोते की जिम्मेदारी से आज़ाद होना चाहता हूँ। तुम बेवजह वक्त तवील कर रहे हो। अगर तुम्हारे बजाय ये काम मैंने किसी और को दिया होता, तो अब तक वो अमली जामा पहना चुका होता। वो गुस्से से बोले थे, नजरें अब भी उनके चेहरे पर ही मरकूज थी। जमान ने नरम लहजे में समझाने की कोशिश की। बाबा, वो मेरा भी बेटा है। मैं भी चाहता हूं कि उसका घर बसे, मगर जब लड़की ही नहीं मिल रही, तो क्या हम कोई और रिश्ता ना देख लें? वक्त बदल गया है, लोग बदल गए हैं। आप क्यों इस फरसूदा रस्म के पीछे लगे हैं? अगर भाभी बेगम ही हमसे रिश्ता रखना नहीं चाहती, तो हमें चाहिए उनको उनके हाल पर छोड़ दें। वो मसलहत भरे लहजे में बोले थे। फुरकान खानजादा के चेहरे पर तैश का रंग दौड़ गया। वो एकदम कुर्सी से उठ खड़े हुए।
ان کی छड़ी फर्श पर जोर से टकराई। आवाज कमरे में गूंज गई। खामोश हो जाओ ज़मान, ज़बान संभाल कर बात करो मेरे सामने। हमारी रिवायतें वक्त के साथ नहीं बदलती। वो लड़की इस खानदान की इज्जत है, हमारी पक का सवाल है। अगर तुम्हें नहीं ढूंढनी आती तो फैसला मुझे खुद करना होगा, मगर याद रखो, अगर वो लड़की ना मिली तो ये जिम्मेदारी तुम्हारे बेटे पर नहीं, तुम पर होगी। फिजा में खामोशी छा गई। फैसल खानजादा सर झुकाए बैठे, जबकि ज़मान के माथे पर पसीने के कतरे चमकने लगे। फुरकान खानजादा वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गए, मगर उनके चेहरे पर एक अज़म नुमाया था। ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई थी। वो ज़मान के चेहरे पर फैला हुआ इज़्तिराब अब बखूबी देख सकते थे, और यही चीज़ उन्हें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रही थी। चंद लम्हा वो कमरे में बैठे थे और फिर उठकर फ़ौरन मर्दान खाने से निकल गए, इस बात से बेखबर कि उनके लिए कितनी बड़ी साजिश तैयार की जा चुकी है। फुरकान साहब ने उनकी पुश्त गहरी निगाहों से देखी। वो अपनी रिवायात से पीछे नहीं हट सकते थे, किसी भी कीमत पर। रात गहरी हो चुकी थी। हर तरफ खामोशी का राज था, जिसे पूरी दुनिया नींद की चादर ओढ़े सो गई हो। कमरे में सिर्फ एक लैंप जल रहा था, जिसकी मध्यम रोशनी ज़ेबुन्निसा बेगम के चेहरे पर पड़ रही थी। वो खामोशी से अपने बिस्तर के किनारे बैठी थी। हाथ में तस्बीह थी, जो आहिस्ता आहिस्ता गर्दिश में थी। उनके चेहरे पर गहरी सोच की परछाइयाँ थीं, जैसे दिल में कोई न कोई बात मुसलसल चुभ रही हो। आज मरियम का बार बार अपने ददयाल के बारे में जानने की कोशिश करना उनको तकलीफ दे रहा था, और वो इसी बारे में मुसलसल सोचे जा रही थी, जो उनको बिल्कुल भी सुकून लेने नहीं दे रही थी। चंद लम्हों बाद अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। वो चौंक गई। निगाहें फौरन दीवार पर लटकी घड़ी की तरफ उठी। रात के ठीक 10 बज रहे थे। माथे पर बल पड़ गए। दिल में एक अनजाना सा खदशा सर उठाने लगा। इस वक्त कौन हो सकता है? उन्होंने ज़ेरे लब कहा और तस्बीह समेट कर उठ खड़ी हुई। दिल में अनजाने ख्यालात गर्दिश करने लगे थे। वो एक जवान बेटी के साथ रहती थी। उन्हें हर वक्त अपनी बेटी की फिक्र सताती थी। एहतियात से कदम रखते वो दरवाजे के जानिब बढ़ी। जैसे जैसे वो दरवाजे के करीब पहुंची, दिल की धड़कन तेज होती गई। न जाने क्यों उनको अजीब घबराहट हो रही थी। बेचैनी सुबह से हो रही थी, लेकिन इस घबराहट की समझ उन्हें बिल्कुल नहीं आ रही थी। दरवाज़ा खोलते ही एक मानूस मगर कई बरसों बाद देखा गया चेहरा सामने था। ज़मान खानज़ादा। आप? ज़ेबुन्निसा बेगम की हैरत भरी आवाज़ निकली। ज़मान खानज़ादा ने तेज़ी से कदम अंदर रखा, चेहरे पर बेचैनी, आंखों में उलझनों का तूफान। मामला बहुत पेचीदा होता जा रहा है भाभी बेगम। अंदर ले चलें, मुझे आपसे तफसीली बात करनी है। वो बरसों पहले ही शाहिद यानी अपने बड़े भाई की फैमिली को तलाश कर चुके थे, लेकिन इंसानियत बरकरार रखने के लिए उन्होंने कभी भी अपनी ज़बान नहीं खोली थी। मगर अब उन्हें सब कुछ रेत की मानंद फिसलता महसूस हो रहा था। इसीलिए वो रात में शहर आ गए थे ताकि तफसील से बात कर सकें। ज़ेबुन्निसा बेगम का दिल जैसे धड़कना भूल गया हो। वो हड़बड़ाकर पीछे हटी और उन्हें ड्राइंग रूम की तरफ ले गई। कमरा सादा मगर साफ सुथरा था। एक पुराना सोफ़ा, सामने शीशे की मेज़ और कोने में एक छोटा सा कालीन बिछा था। उन्होंने ज़मान को बैठने का इशारा किया और खुद भी सामने बैठ गई। क्या हुआ भाई साहब, इतने घबराए हुए क्यों हैं? रात के इस पहर आप गांव से आए हैं, खैरियत तो है? वो एक के बाद एक सवाल कर गई। ज़मान ने लंबी सांस ली, जैसे कोई बोझ उतारने जा रहे हों। हाँ, मैं बहुत जल्दी में यहाँ आया हूँ। मामला संजीदा है और अब बात खामोश रहने से नहीं बनेगी। मुझे आपसे तफसीली बात करनी है, लेकिन पहले ये बताएं मरियम कहाँ है? वो एहतियात से नजरें घर में घुमाते हुए बोले। यहाँ आने के बाद उन्होंने पानी पिया था और ना ही चाय, बस काफ़ी हल्कान नजर आ रहे थे। ज़ेबुन्निसा बेगम ने एक नज़र सीढ़ियों की तरफ डाली और आहिस्ता बोली, वो तो सो रही है। शाम से थकी हुई थी, अभी कुछ देर पहले ही उसकी आंख लगी है। अगर आप बोलें तो जगा दूं? आपको याद भी कर रही थी। ज़मान के चेहरे पर हल्की सी आसूदगी की झलक आई। नहीं नहीं, उसे सोने दे, ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात है, मुझे इस वक्त सिर्फ आपसे बात करनी है।
मरियम का होना अभी ज़रूरी नहीं है। ज़ेबुन्निसा बेगम की पेशानी पर फिक्र की लकीरें अब गहरी हो चुकी थी। बताएं क्या बात है? आपका यूं बेवक्त आना, चेहरे पर परेशानी मुझे डरा रहा है ज़मान भाई। कुछ तो बोलें, मुझे अब घबराहट हो रही है। वो वाकई खौफजदा हो गई थी। दिल की धड़कनें बेकाबू हो चुकी थीं। मामला थोड़ा पेचीदा हो रहा है। अब हर तरफ आपके लिए खतरा ही खतरा है। ज़मान खानज़ादा ने अपनी नज़रें ज़ेबुन्निसा बेगम के चेहरे पर गाड़ दी, जिनके तासुरात में खौफ, उलझन और एक माँ का अस्तराब वाज़ेह झलक रहा था। बाबा साहब ने आपको तलाश करने का काम फैसल के हवाले कर दिया है, ज़मान ने गहरी आवाज़ में कहा। और आप तो जानती हैं फैसल इस काम में कितना माहिर है। वो महज मेरी वजह से खामोश रहा, लेकिन अब वो खामोश नहीं रहेगा। उसको इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं है कि मैं बरसों पहले आपको तलाश कर चुका हूँ। हाँ, उसको अंदाज़ा है, लेकिन यकीन नहीं। मगर जब वो इस काम को सरअंजाम देना शुरू करेगा तो किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाएगा, और वो आपको और मरियम को हवेली में ले जाकर खड़ा कर देगा। आप जानती हैं ना, उसके दिल में रहम नहीं है। वो जज्बात की नहीं, रिवायात और रस्म व रिवाज की परवाह करता है। ज़ेबुन्निसा बेगम के हाथों में लर्जिश आ गई। दिल जैसे सीने में धड़कने के बजाय दहकने लगा हो। ज़मान ने बात जारी रखी। बाबा साहब का कहना है कि वो मरियम की शादी वजदान से करवा कर रहेंगे। वो चंद रोज़ में लंदन से अपनी तालीम मुकम्मल करके वापस आ रहा है। अब आप मुझे बताएं, आपका क्या इरादा है? कभी बाबा साहब इतनी जल्दी कर रहे हैं। मैंने वजदान को बातों बातों में रोका भी है, लेकिन भला वो क्यों रुकेगा? पढ़ाई के ख़त्म हो जाने के बाद, वो समझदारी से बोले थे। ज़ेबुन्निसा बेगम ने अपनी निगाहें झुका ली, जैसे दिल पर लगी चोट को लफ्ज़ों का जामा पहनाना दुश्वार हो। कुछ पल खामोश रही, फिर बोली, भाई साहब बुरा ना बनाएं, लेकिन वजदान की फितरत बिल्कुल अपने दादा जैसी है। वो गुरूर, वो सख्ती, वो हुक्म चलाने का अंदाज। मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची की ज़िंदगी वैसे ही अजाब में गुजरे जैसे मेरी गुजरी थी। बेशक वो आपका बेटा है और इस लिहाज से मुझे बहुत अजीज़ है, क्योंकि वाहिद आप थे जिसने अपने बड़े भाई के मरने के बाद भी मेरी और मेरी बच्ची का ख्याल रखा। लेकिन वजदान का रवैया मुझे आज भी याद है। वो गुस्से का बहुत तेज़ है। मुझे आज भी याद है कि किस तरह एक ख्वाहिश पूरी ना होने पर वो कैसे पूरे घर को सर पर उठा लेता था। उनकी आवाज़ भर्रा गई, आंखों में नमी तैरने लगी। मैं माजरत चाहती हूँ। मैं अपने शौहर के वादे, उसकी आखिरी नसीहत को नहीं तोड़ सकती। शाहिद ने कहा था हमेशा हवेली से दूर रहना। उसने कहा था अगर मैंने बेटी को वहाँ से जोड़ा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मेरी बरसों की रियाजत, कुर्बानी सब खाक में मिल जाएगी, और खुदा के लिए मैं अपनी बेटी कुर्बान नहीं कर सकती। वो सर झुकाए भीगे लहजे में बोली थी। ज़मान की आंखों में एक लम्हे को तजब्जुब आया, मगर वो अपनी जगह मजबूती से बैठे रहे। भाभी बेगम, मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ, लेकिन हालात हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं। बाबा साहब किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो अपने फैसलों से पीछे हटने वालों में से नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूँ सब कुछ सुलझा लूँ, मगर अभी वो मजीद कुछ कहने को थे कि अचानक घर के मरकजी दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी। एक नहीं, मुसलसल और बेसब्री से, जैसे कोई खबर, कोई तूफान दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। ज़ेबुन्निसा बेगम का दिल उछल कर हलक में आ गया। उन्होंने खौफज़दा नज़रों से ज़मान को देखा, जिनकी आंखों में भी बेचैनी की झलक थी। अब इस वक्त? ज़ेबुन्निसा बेगम ने बमुश्किल कहा। ज़मान फौरन उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी, जैसे वो पहले से जानते हों कि दरवाजे के उस पार क्या तूफान छुपा हुआ है। लगता है वक्त ने अपना फैसला सुना दिया है भाभी बेगम। अब जो होगा वो सबके नसीब में लिखा जा चुका है। ज़ेबुन्निसा बेगम ने लरसते हाथों से दुपट्टा सर पर लिया और धड़कते दिल के साथ दरवाजे की जानिब बढ़ी, जहां तकदीर एक नए मोड़ के साथ उनकी मुंतज़िर थी। दरवाजे पर होने वाली पे दर पे दस्तक जैसे पूरी फ़ज़ा को चीरती चली जा रही थी। ज़ेबुन्निसा बेगम का दिल धड़कना भूलने लगा। उन्होंने खौफ से दरवाजे की सिमत देखा। कदम खुद ब खुद पीछे हटने लगे। ज़मान खानज़ादा ने उनके चेहरे की दहशत को महसूस किया
और धीरे से बोले, भाभी बेगम, आप वहीं ठहरे, मैं देखता हूं कौन है। एक दिन में छोटी सी उम्मीद थी कि जैसा वो सोच रहे थे ऐसा ना हो, लेकिन अचानक से दरवाजे पर दस्तक होना और उनके आने के बाद इस तरह होना उन्हें बहुत कुछ समझने पर मजबूर कर रहा था। वो खुद तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़े और एक झटके से दरवाजा खोला, लेकिन सामने का मंजर देखकर उनका सांस रुक गया, क्योंकि सामने कोई और नहीं, उनका छोटा भाई फैसल खानजादा खड़ा था। आंखों में गुस्से की चिंगारियां, जबड़े भेंचे हुए, और साथ ही फुरकान खानजादा अपनी सख्तगीर आंखों और बुलंद बांग रोब के साथ मौजूद थे। उनके पीछे 2 गार्ड्स खड़े थे, हाथों में चमकती हुई बड़ी बड़ी राइफल्स, जिसे अभी किसी को निशाना बनाना हो। फुरकान खानजादा ने आगे बढ़कर जमान को घूरा। हमें तुम पर पहले ही शक था, लेकिन आज जब तुम मर्दान खाने में गड़बड़ाए, हमें यकीन हो गया कि तुम शाहिद के घर वालों को तलाश कर चुके हो। तुमने हमें धोखा दिया जमान, हटो सामने से। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मेरे बेटे होकर तुमने मेरे साथ बगावत की। हालांकि तुम जानते हो मैं कितने सालों से इन दोनों खवातीन को तलाश करने की जिद्दोजहद कर रहा हूं। अगर मुझे शुरू में ही भिनक लग जाती कि तुम अपने बाप के साथ ऐसा सलूक करोगे, तो मैं कभी तुम्हारे सर पर यह जिम्मेदारी ना डालता। ये कहते ही वो धक्का देकर अंदर दाखिल हुए और बुलंद आवाज में पुकारा, ज़ेबुन्निसा बाहर आओ। उनका गरजदार लहजा घर की दरो दीवार दहला चुका था। जमान खामोश खड़े रहे, जैसे वक्त ने उनकी जबान बंद कर दी हो। चंद लम्हों बाद दरवाजे की कोने से सहमी हुई, लरसती हुई ज़ेबुन्निसा बेगम बाहर निकली। उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, कदम डगमगा रहे थे और आंखों में सिर्फ एक सवाल था, आखिर ये सब क्यों? बेशक वो जमान साहब के सामने पर हद बात बोल रही थी, मगर जानती थी अगर फुरकान साहब सामने आ गए तो वो कुछ नहीं बोल पाएंगी, और ऐसा ही हुआ था। फुरकान खानजादा की निगाह उन पर पड़ी तो वो एक लम्हे को रुक गए, फिर तेजी से बोले, खानदान की बड़ी बहू होकर तुमने जो घर की दहलीज पार की थी, उसकी सजा अब तुम्हें भुगतनी होगी। हमने तुम्हें इज्जत दी, तुमने उस इज्जत को पांव तले रौंद दिया। तुम क्या समझती थी कि हम कभी भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे? आज देखो, 15 साल बाद भी हमने तुम्हें तलाश कर ही लिया। उन्होंने इशारा किया और गार्ड्स फौरन आगे बढ़े। हाथों में जंजीरें चमकने लगी। ज़ेबुन्निसा बेगम का दिल जैसे किसी ने चीर कर रख दिया हो। वो घबराकर कदम पीछे हटाती बोली, नहीं नहीं, मेरी बेटी बहुत मासूम है, उसके सामने ये सब मत करें, खुदा के लिए। अगर आपको मुझसे हिसाब लेना है तो मैं चलने को तैयार हूं, मगर ये जंजीरें, ये तौहीन मत करें प्लीज। वो लरज उठी थी, खौफ से उनकी जान निकल गई थी। मरियम के सामने वो ये तमाशे नहीं करना चाहती थी। उनकी आवाज में एक माँ की फरियाद थी, एक औरत की बेबसी और एक बेटी को बचाने की तड़प। फुरकान खानजादा के चेहरे पर चंद लम्हे को खामोशी छा गई। उनकी सख्त आंखों में एक लम्हे को गहरी सोच उभरी। गार्ड जंजीरें थामे उनके हुक्म के मुंतजर खड़े रहे। बिलाखिर फुरकान खानजादा ने सर्द आवाज में कहा, मरियम को बुलाओ, और खुद आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ बढ़ गए, जैसे एक फैसला सुनाने के बाद पीछे सिर्फ अंजाम छोड़ आए हों। जमान ने बेबस निगाहों से ज़ेबुन्निसा बेगम को देखा, जिनके आंसू अब दामन भिगोने लगे थे, और तकदीर उनके दरवाजे पर जंजीरों की सूरत में खड़ी थी। उनके पास अब कुछ नहीं बचा था। उन्हें हर कीमत पर फुरकान साहब की बात माननी थी। स्याह रंग की बड़ी जीप रात के अंधेरे में सुनसान सड़क पर तेज रफ्तारी से दौड़ रही थी। गाड़ी के इर्द गिर्द खौफ और सकूत की एक ऐसी दीवार कायम हो चुकी थी जो मरियम जैसे नाजुक दिल के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो अपनी माँ ज़ेबुन्निसा बेगम के पहलू में सहमी हुई बैठी थी। उनकी नाजुक उंगलियां माँ की कलाई को बार बार झंझोड़ रही थी। अम्मी, ये सब कौन लोग हैं और हम कहाँ जा रहे हैं? मरियम ने कपकपाती आवाज में पूछा। नजरें बार बार सामने वाले नशिस्त पर बैठे फुरकान खानजादा पर जाकर ठहर जाती, जिनका चेहरा सख्ती से बंद और आंखें किसी अनजाने तूफान की पेशगोई कर रही थी। अम्मी, मैंने जमान अंकल को देखा था, वो भी तो घर पर थे ना? वो कहाँ है? उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा। ज़ेबुन्निसा बेगम का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उनके होंठ लरस रहे थे और आंखों में एक अनजानी नमी झलकने लगी थी।
انہوں نے جلدی سے مریم کو خود کے قریب کیا، اس کا سر سینے سے لگا لیا اور دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ چپ ہو جاؤ مریم، بس دعا کرو اللہ ہمیں باعزت اس حویلی سے واپس لائے۔ اللہ حفاظت کرے تمہاری، بیٹا میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ مریم نے اپنی ماں کے الفاظ میں چھپی بے بسی کو محسوس کیا۔ اس کا نازک دل اور بے چین ہو گیا۔ وہ ماں کے کپڑوں کو مٹھی میں دبا کر بولی، امی ہوا کیا ہے؟ پلیز آپ مجھے بتائیں نا، آپ مجھ سے کچھ نہ چھپائیں، آپ مت ڈریں، میں ان سے سب سے سوال کرتی ہوں، ایسے کیسے یہ ہمیں یوں لے جائیں گے؟ یہ لوگ ہیں کون؟ وہ ابھی مزید کچھ بولنے ہی والی تھی کہ زیب النساء بیگم نے فوراً اپنے ہاتھ سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بس چپ رہو مریم، آواز نیچی رکھو۔ گاڑی میں اگلی نشست پر فرقان خانزادہ خاموشی سے بیٹھے تھے۔ ان کے برابر میں ڈرائیور نظریں سڑک پر جمائے گاڑی کو گھٹا ٹوپ اندھیرے میں لے جا رہا تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس رات کے اندھیرے کو کاٹتی ہوئی راستہ بناتی جا رہی تھی، مگر پیچھے پیچھے مریم کے دل میں اندھیرے اور زیادہ گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ گاڑی کے اندر کا ماحول بوجھل تھا، مریم کی سانسیں تیز ہو رہی تھی اور زیب النساء بیگم کے لب مسلسل دل ہی دل میں دعائیں دہرا رہے تھے۔ ان کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں اور وہ اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی، جیسے اپنی آغوش کو آخری قلعہ سمجھ رہی ہوں۔ مریم نے آہستہ سے ماں کا ہاتھ تھاما، جسے کہنا چاہتی ہو، امی میں آپ کے ساتھ ہوں۔ لیکن ان کہی باتوں میں گاڑی منزل کے جانب بڑھتی رہی اور تقدیر کسی نئے موڑ کے قریب جا کر پہنچ چکی تھی۔ وسیع اور عریض حویلی کا لاؤنج اس وقت مکمل خاموشی میں ڈوبا تھا، جیسے ہر دیوار اور ہر ستون سانس روکے ایک فیصلہ کن لمحے کا گواہ بننے کو تیار ہو۔ سفید ماربل کا فرش، قدآور فانوس کی زرد روشنی، بھاری پردوں کے سائے اور دیواروں پر آویزاں خاندانی تصاویر، یہ سب اس ماحول کو مزید بوجھل اور سنگین بنا رہے تھے۔ صوفے کے ایک کونے پر زیب النساء بیگم اپنی بیٹی مریم کو لپٹائے سہم کر بیٹھی تھی۔ مریم کا چہرہ ماں کے کندھے سے چپکا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں معصوم خوف اور حیرت جھلک رہی تھی۔ ماں کی باہیں اس کے گرد حفاظتی قلعہ بنی ہوئی تھی، جیسے ہر برائی سے بچانے کی آخری کوشش کر رہی ہوں۔ سامنے سربراہی صوفے پر اپنے روایتی شاہانہ انداز میں فرقان خانزادہ بیٹھے تھے۔ ان کا چہرہ غصے اور حقارت سے سخت ہو چکا تھا۔ ان کے برابر میں فیصل خانزادہ اور زمان خانزادہ کی بیویاں خاموشی سے سر جھکائیں بیٹھی تھی، جیسے وہ بھی جانتی ہوں کہ آج کا حساب کتاب طے پا کر رہے گا۔ فرقان خانزادہ نے گردن موڑ کر سیدھا زیب النساء کی طرف دیکھا۔ ان کی گرجدار آواز کمرے کی فضا چیرتی ہوئی نکلی۔ 15 سال سے ہم تمہیں تلاش کر رہے ہیں زیب النساء۔ تم نے جو ہماری دہلیز پار کی، وہ صرف ایک عورت کا فیصلہ نہیں تھا، وہ ہمارے خاندان کی عزت کی توہین تھی۔ کیا کہو گے تم اپنے اس فعل کے بارے میں؟ زیب النساء بیگم کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کپکپاتی آواز میں بولی، مجھے اپنی بیٹی کی فکر تھی، مجھے اس کی فکر تھی، تبھی میں اسے یہاں سے لے گئی۔ مجھے ڈر تھا کہ… ابھی ان کے الفاظ مکمل بھی نہ ہوئے تھے کہ فرقان خانزادہ دھاڑ کر بولے، خاموش ہو جاؤ گستاخ عورت، تمہاری وجہ سے ہمیں کتنی خواری جھیلنی پڑی تمہیں اندازہ بھی ہے؟ تم جانتی ہو میرا بیٹا شاہد جب مرا تھا تو اس کی آخری سانسوں میں صرف ایک افسوس تھا کہ اس کی بیوی، اس کی زندگی کے ساتھی اس کے پاس نہیں ہے۔ تم اس کی آخری رسومات تک میں شامل نہ ہوئی۔ کیا یہی محبت تھی تمہاری؟ کیا یہی وفاداری تھی؟ زیب النساء بیگم کا سر جھک گیا۔ وہ کچھ نہ بول سکی۔ ان کے ہونٹ ہلے ضرور، مگر آواز نہ نکل سکی۔ ان کے آنسو اب تھمنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ مریم ماں کے چہرے کو دیکھ کر اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ اس نے ماں کا ہاتھ تھاما، وہ ان کو اپنا احساس دلا رہی تھی۔ زیب النساء بیگم کچھ کہتی اس سے پہلے ہی فرقان صاحب اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور ملازمہ کو دیکھتے ہوئے بولے تھے، میری بہو اور پوتی دونوں کو کمرہ دکھاؤ، شاہد کے کمرے میں ہی یہ ٹھہریں گی۔ یہ بول کر وہ ٹھہرے نہیں تھے، بلکہ مردان خانے کی جانب چل پڑے تھے۔ زمان صاحب اور فیصل صاحب بھی ان کے پیچھے چل پڑے۔ دونوں خواتین کچن کی جانب چلی گئیں اور ملازمہ انہیں لے کر کمرے میں آ چکی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما اور انہیں بستر پر لے کر بیٹھتے ہی ان کی طرف دیکھا۔ اماں، وہ آہستگی سے بولی،
ये सब लोग कौन हैं? ये क्या बातें कर रहे थे? हम कहाँ आ गए हैं? क्या ये मेरा ददयाल है? वो वाकई उलझन का शिकार हो चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। ज़ेबुन्निसा बेगम ने धीरे से उसके बालों में हाथ फेरा। आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं। हाँ बेटी, ये तुम्हारा ददयाल है, तुम्हारे बाबा का घर, तुम्हारे दादा की हवेली। मरियम ने नासमझी से पूछा, और जमान अंकल, वो मेरे चाचू हैं क्या? ज़ेबुन्निसा ने गहरा सांस लिया, आंखें बंद की और फिर एक थकी हुई आवाज में बोली, हाँ, वो तुम्हारे चाचू हैं, और अब तुम वो सच सुनने वाली हो जिससे मैं तुम्हें हमेशा बचाना चाहती थी। वो अपने आंसू साफ करते बोली थी। मरियम की नजरें माँ के चेहरे पर जमी रहीं, जैसे वो हर लफ्ज अपने दिल पर नक्श करना चाहती हो। मैंने और तुम्हारे बाबा शाहिद ने मोहब्बत की थी, लेकिन वो मोहब्बत हमारे लिए सजा बन गई। तुम्हारे दादा फुरकान खानजादा इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। वो किसी आम लड़की को अपनी बहू बनाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। फिर भी तुम्हारे बाबा ने हिम्मत की, हमने भागकर शादी कर ली और कुछ वक्त के लिए सब ठीक रहा। लेकिन जब मैं तुम्हारे वजूद से हामला हुई तो सब कुछ बदल गया। तुम्हारे दादा ने यह रिश्ता कभी कबूल नहीं किया। और वो लम्हा भर को खामोश हुई, आंखों से आंसू बहने लगे। और उन्होंने फैसला कर दिया कि तुम्हारी शादी तुम्हारे पैदा होते ही उनके छोटे बेटे के बेटे यानी वजदान खानजादा से होगी। तब वो मुझे कबूल करेंगे। मरियम साकित बैठी रही, अल्फाज जैसे दीवारों से टकरा रहे हों, लेकिन वो उन्हें अपने अंदर जज्ब कर रही थी। मैं इस बात के सख्त खिलाफ थी। मरियम, मैं जान चुकी थी इस घर की हकीकत। यहाँ जो जुल्म मेरे साथ हुआ वो मैं तुम पर नहीं होने देना चाहती थी। मैंने कसम खाई थी कि मैं मर जाऊंगी, मगर तुम्हारी शादी इस खानदान में नहीं करूंगी। ज़ेबुन्निसा बेगम का लहजा लरसने लगा। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से लेकर भाग गई, दूर, बहुत दूर। लेकिन फिर कुछ अरसे बाद खबर मिली कि तुम्हारे बाबा वो नहीं रहे। मरियम की आंखें नम होने लगी, मगर वो अब भी चुप थी, जैसे हर हकीकत अंदर से तोड़ रही हो। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई मरियम। तुम्हारे बाबा ने जाते जाते मुझसे कहा था कि चली जाओ। मैं चली आई, मगर मेरे साथ मेरा सुहाग, मेरी खुशियां सब छिन गई। वो चेहरा हाथों में छुपाए बिलक बिलक कर रोने लगी, जबकि मरियम परेशान होकर उन्हें सीने से लगा चुकी थी। वक्त गुजरता जा रहा था। 2 दिन इसी कश्मकश में बीत गए थे। आज मामूल का दिन था। दोपहर की हल्की धूप हवेली की बुलंद और बाला दीवारों से छन कर शहर में सुनहरी रोशनी बिखेर रही थी। हर तरफ गहमा गहमी थी। मुलाजमाएं रंग बरंगी चादरें तान रही थीं। दरो दीवार पर खूबसूरत गुलाबी और सुनहरी गजरे टंगे जा रहे थे। सहन के बीचों बीच खुशबूदार अतर छिड़का जा चुका था। चोपदार गैलरियों में रंगीन लालटेनें आवेजा की जा रही थीं और हर चेहरे पर खुशी का उजाला था। मरियम आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरती नीचे आई। उसका जहन बोझल था। रात भर नींद आंखों से कोसों दूर रही थी। वो अभी किचन की तरफ जा रही थी कि सामने से आती मुलाजमा से रुककर पूछ बैठी, ये सब क्या हो रहा है? हवेली क्यों सजाई जा रही है? मुलाजमा, जिसकी कलाइयों में गजरियां खनक रही थी, चमकती आंखों से मुस्कुरा कर बोली, बीबी जी, आपके मंगेतर आ रहे हैं, वजदान खानजादा साहब। एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं। जमान साहब और फैसल साहब उन्हें लेने गए हैं। अभी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। मरियम के कदम वहीं रुक गए। चेहरे का रंग ऐसा हो गया जैसे खून निचोड़ लिया गया हो। दिल की धड़कन साकित सी हो गई। जबान पर कोई लफ्ज ना आया, बस होंठ कपकपाए और वो खामोशी से वापस ऊपर की तरफ सीढ़ियां चढ़ गई। कमरे में दाखिल होते ही उसने दरवाजा बंद किया और धड़ाम से बिस्तर पर बैठी। उसका दिल किसी खाली कुएं की तरह गूंज रहा था। दिमाग सुन्न हो चुका था। वो पथराई नजरों से सामने दीवार को देख रही थी जब अचानक दरवाजा खुला और ज़ेबुन्निसा बेगम अंदर आई। उन्होंने मरियम को यूं चुपचाप बैठा देखकर माथे पर बल डाले। मरियम, क्या हुआ बेटा? यूं गुमसुम क्यों बैठी हो? मरियम ने धीरे से मां की तरफ देखा। होंठों पर कपकपाहट थी, आवाज टूटे हुए कांच जैसी। अम्मा, ये सब लोग कह रहे हैं कि वजदान आ रहा है।
اور وہ میرا منگیتر ہے؟ یہ کیا مذاق ہے؟ وہ واقعی گھبرا چکی تھی۔ زیبالنساء بیگم چند لمحے کچھ نہ بول سکی، پھر آہستگی سے قریب آئیں، اس کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے بولی، بیٹا چپ ہو جاؤ، تم نہیں جانتی کہ تمہارے دادا کتنے سخت اور بے رحم ہیں۔ میں مجبور ہوں اب۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اماں، میں تو بلال سے محبت کرتی ہوں، آپ نے خود میری منگنی اس سے کروائی تھی، پھر یہ سب کیوں؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ تماشا دیکھ دیکھ کر اب وہ تھک گئی تھی۔ زیبالنساء بیگم نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ میں مجبور ہوں مریم، وہ صرف تمہاری نہیں، میری بھی زندگی کے فیصلے کرتے آئے ہیں۔ اگر میں نے کچھ کہا تو وہ تمہیں چھین لیں گے مجھ سے۔ مریم کی آواز لرزنے لگی۔ تو کیا میری محبت کی کوئی قیمت نہیں؟ اماں، میں ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ زیبالنساء بیگم نے ایک گہری سانس لی۔ کبھی کبھی بیٹی، محبت سے زیادہ اہم ہوتا ہے بچ جانا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ دیوار پر لٹکی گھڑی کی ٹک ٹک دونوں ماں بیٹی کے دل کی دھڑکنوں میں گم ہو چکی تھی۔ نیچے حویلی خوشیوں سے جگمگا رہی تھی، لیکن کمرے میں صرف ایک انکہی اذیت کا سایہ رقص کر رہا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، وجدان آ چکا تھا۔ اس کا استقبال بہت شاندار انداز میں کیا گیا۔ رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ داجی کا کمرہ دمک رہا تھا۔ ان کا لاڈلا پوتا واپس آ گیا تھا۔ بیچوں بیچ آراستہ سنگ مرمر کی میز تھی، جس کے سامنے دونوں نسلوں کی نمائندگی کرتے مرد بیٹھے تھے، فرقان خانزادہ اور وجدان خانزادہ۔ وجدان سفید شلوار قمیض میں ملبوس، خاموش، پروقار اور سراپا اعتماد بنا اپنی مخصوص کرسی پر ٹکا بیٹھا تھا۔ تیکھے نین نقش، گہری آنکھیں اور سنجیدہ چہرہ، اس کی موجودگی کسی خاموش طوفان کی مانند تھی۔ فرقان خانزادہ نے لمبا کش سگریٹ سے لے کر ایش ٹرے میں بجھایا اور پھر ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بولے، وجدان، میں تمہارے ساتھ لمبی تمہید نہیں باندھوں گا۔ تم جانتے ہو کہ مریم اب واپس آ چکی ہے۔ بچپن میں ہی تمہارا اور اس کا رشتہ طے ہو چکا تھا۔ 15 سال بعد وہ لوگ لوٹے ہیں، لیکن آج بھی تمہاری امانت ویسے کی ویسی ہے۔ کیا اب تم اس رشتے کے لیے راضی ہو؟ یاد رکھنا وجدان، وہ تمہاری منگ ہے، اور منگ نکاح کی حیثیت رکھتی ہے۔ وجدان نے پلکیں اٹھائیں، گہری نظروں سے اپنے دادا کو دیکھا اور دھیمے مگر مضبوط لہجے میں بولا، ٹھیک ہے دادا جان، میں راضی ہوں، نکاح کا انتظام کریں، لیکن فی الحال صرف نکاح، رخصتی کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی چھا گئی۔ فرقان خانزادہ کی نگاہوں میں سوچ کا گہرا عکس ابھرا، ماتھے پر شکنیں ابھری اور وہ ذرا سا جھکے۔ بیٹے، تمہیں یاد ہے نا، اس کی ماں بھاگ گئی تھی؟ کہیں یہ بھی؟ اس سے پہلے کہ ان کے الفاظ مکمل ہوتے، وجدان کی آنکھوں میں بھڑک ابھری۔ اس نے سیدھا ہو کر ٹھہرے ہوئے مگر تیز لہجے میں کہا، وہ شاہد تاؤ تھے جنہوں نے اپنی بیوی کو جانے دیا۔ میں وجدان خانزادہ ہوں۔ اگر میری بیوی نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو اس کی ذات کے چیتھڑے بکھیر دوں گا، مگر اپنی بیوی کو خود سے دستبردار نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی بے رحم خود اعتمادی تھی جو نسل در نسل چلتی آئی تھی۔ فرقان خانزادہ نے چند لمحے اسے دیکھا، جیسے اپنے جوانی کے عکس کو آنکھوں کے سامنے پا لیا ہو، پھر دھیرے سے مسکرائے۔ وہ مسکراہٹ جس میں فخر تھا، تحسین تھی۔ شاباش وجدان، یہی خون ہے ہمارا، خانزادہ کبھی ہارتا نہیں۔ وجدان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس سر کو ذرا سا خم دیا اور اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فرقان صاحب کی نگاہیں اس کے پیچھے تکتی رہیں اور ان کے چہرے پر وہ اطمینان پھیل چکا تھا جس کا انتظار برسوں سے تھا۔ خانزادہ خاندان کا وارث اپنے فرض کو سمجھ چکا تھا۔ اس کے حکم کے مطابق نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ وقت گزرا تھا اور آج نکاح کا دن آ چکا تھا۔ ان کے اعتراض کو بالکل بھی خاطر خواہ نہیں لیا گیا، بلکہ صاف دھمکی دی گئی تھی کہ اگر ایک بار بھی انکار کیا تو بیٹی چھین لی جائے گی۔ اور یہاں آ کر زیبالنساء بیگم خاموش ہو گئی تھی۔ کمرہ دلہن کے لوازمات سے سجا ہوا تھا، مگر ماحول میں خوشی کی رمق تک نہ تھی۔ عروسی لباس میں لپٹی مریم صوفے کے ایک کونے پر سمٹی بیٹھی تھی، جیسے اپنے ہی وجود سے چھپنے کی کوشش کر رہی ہو۔ سرخ جوڑا،
भारी दुपट्टा, सुनहरी गोटों से सजा आंचल और पेशानी पर झूलता टीका, सब कुछ उसके चेहरे की उदासी के सामने बेरंग लग रहा था। आंखों से बहते आंसू उसके गालों पर लकीर की सूरत बह रहे थे और दुल्हन की मुस्कुराहट की जगह खामोशी और बेबसी ने ले ली थी। ज़ेबुन्निसा बेगम उसके करीब आकर बैठी, आहिस्तगी से उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, हिम्मत करो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। कभी कभी दिल का फैसला वक्त के सामने झुक जाता है। ये सब किस्मत का लिखा है, तुम कमजोर मत पड़ो। मरियम ने नजरें उठाई नहीं, बस और शिद्दत से रोने लगी। अम्मा, आपने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं बिलाल से मोहब्बत करती थी। ज़ेबुन्निसा ने उसका हाथ थामकर नरमी से दबाया। मैं जानती हूं बेटा, लेकिन ये तुम्हारी हिफाजत का वाहिद रास्ता है। तुम्हारे दादा का फैसला आखिरी होता है। मैं इनकार करती तो तुम्हें उनके कहर से कोई नहीं बचा सकता था। मरियम ने रोते रोते अपना चेहरा दुपट्टे में छुपा लिया। तभी कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और अगले ही लम्हे दरवाज़ा खुला। फुरकान खानजादा, जमान खानजादा, 2 मुअज़्ज़िज़ गवाह और एक मौलवी साहब कमरे में दाखिल हुए। मरियम सहम कर थोड़ा और सिमट गई। ज़ेबुन्निसा ने उसका हाथ मजबूती से थामा। मौलवी साहब ने कलमे के बाद संजीदा लहजे में कहा, मरियम खानजादा बिनते शाहिद खानजादा, आपका निकाह वजदान खानजादा वल्द जमान खानजादा से मुकर्ररा हैक महर के इवज़ किया जा रहा है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? कमरे में एक लम्हे को जैसे वक्त रुक गया। मरियम की सिसकियां बंद हो गईं, लेकिन उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वो खामोश रही, आंखें नम, दिल मुस्तरिब। ज़ेबुन्निसा ने उसके हाथ पर दबाव डाला, सरगोशी में कहा, कह दो बेटा, अल्लाह बेहतर करेगा। मरियम ने बमुश्किल लब हिलाए, आवाज़ नमी में भीगी हुई, कांपती हुई। कबूल है। मौलवी साहब ने दूसरी बार और फिर तीसरी बार सवाल दोहराया और हर बार वही सहमा, मध्यम, कांपता हुआ जवाब आया, कबूल है। दूसरी तरफ लाउंज में निकाह का सादा सा इंतजाम किया गया था। वजदान सफ़ेद शवार कमीज में वकार और सुकून की मुकम्मल तस्वीर बना हुआ फर्श पर बिछे कालीन पर विराजमान था। गवाह उसके करीब बैठे थे। मौलवी साहब ने उसी सवाल को उसके सामने दोहराया, वजदान खानजादा वल्द जमान खानजादा, क्या आपको मरियम खानजादा बिनते शाहिद खानजादा से ये निकाह कबूल है? वजदान ने ज़रा सा सर उठाया, आंखों में ठहराव, चेहरे पर सख्ती और लबों पर यकीन की लकीर। कबूल है। सवाल 2 बार और दोहराया गया और हर बार उसका लहजा पहले से ज्यादा मुतमईन, पुरएतमाद और ठोस था। कबूल है। निकाह मुकम्मल हुआ, मगर दोनों दिल किसी और किनारे खड़े थे। एक मोहब्बत के ख्वाब से बिछड़कर और दूसरा जिद और इख्तियार के मीनार पर तन्हा। खामोशियों में बंधी ये डोर किस्मत की उंगली थाम कर वक्त की राहों पर चल पड़ी थी। वक्त रफ्तार से गुजर रहा था। दिन के साए लंबे हो चुके थे। हवेली के राहदारियों में खामोशी थी, मगर एक तेज दौड़ती चाप ने सबको चौंका दिया। मरियम सुर्ख आंखों, कांपते कदमों और तेजी से धड़कते दिल के साथ हवेली की सीढ़ियां अबोर करती मरकजी दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसके पीछे ज़ेबुन्निसा बेगम की सदा गूंजी, मगर वो रुकी नहीं। सहन में काम करती मुलाजमाएं और फैसल शाह की बीवी हैरत ज़दा नजरों से उसे देखने लगी, मगर वो सबको नज़रअंदाज करती, आंखों में कुछ खोने और पाने का जुनून लिए दुपट्टा संभालती, सांस फुलाती मेन दरवाजे की तरफ बढ़ी, इस बात से बेखबर कि अब वो कंवारी नहीं है बल्कि खानजादा की बहू है। दरवाजे पर वो शख्स खड़ा था जिसे देखने की तड़प ने उसे रातों को जगाया, जिसकी याद ने उसे बेकरारी की इंतहा तक पहुंचाया था। बिलाल। उसकी आंखों में हैरत, गुस्सा और दुख का तूफान छुपा था। जैसे ही मरियम उसके सामने रुकी, वो बोल उठा, ये क्या तमाशा है मरियम? बिलाल की आवाज में जहर भरी नमी लिए थी। ये कैसा धोखा है? हमारी मंगनी हुई थी, हम शादी करने वाले थे, और तुमने बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए निकाह कर लिया। आखिर क्यों? मरियम का चेहरा जर्द पड़ चुका था, आंखों में शर्मिंदगी और आंसू तैर रहे थे। बिलाल, मेरी मजबूरी थी, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, तुम मेरे दिल में थे, हो
और शायद हमेशा रहोगे। लेकिन क्या? बिलाल का लहजा बुलंद हुआ। तुम्हें पता भी है मेरे माँ बाप ने कितनी मुश्किल से तुम्हारी जात को कबूल किया था। मैंने सब कुछ दांव पर लगाकर तुम्हारे साथ जिंदगी का ख्वाब देखा था, और तुमने मेरे ख्वाबों का जनाजा निकाल दिया। मरियम ने एक लम्हे को आंखें बंद की, फिर बेबसी से बोली, बिलाल, मेरी माँ ने मुझे मजबूर किया। दादा के हुक्म के खिलाफ कोई नहीं जा सकता यहाँ। उन्होंने मुझे वजदान के साथ बांध दिया और मैं कुछ ना कर सकी। मैं इस निकाह के दिन रोई थी, चीखी थी, दिल ही दिल में, लेकिन मेरी आवाज़ किसी ने ना सुनी। बिलाल ने कर्ब से अपना सर झटका। तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? कम से कम मैं तुम्हें वहां से निकाल सकता था मरियम। मैं तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ जाता, लेकिन तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया। मरियम ने एक कदम करीब आकर उसके हाथ को छूना चाहा, मगर बिलाल ने हाथ पीछे कर लिया। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ बिलाल, ये सच है। ये निकाह मेरे दिल का फैसला नहीं था, ये मेरी बेबसी का अंजाम था। बिलाल ने तंजिया मुस्कुराहट से उसे देखा। मोहब्बत? तुम्हारी मोहब्बत इतनी कमजोर थी कि एक खानदानी हुक्म के सामने झुक गई। तो फिर रहने दो ऐसी मोहब्बत, मेरे किसी काम की नहीं, जो इम्तिहान में नाकाम हो जाए। ये कहकर वो मुड़ा और बगैर पलटे कदमों की चाप छोड़ता चला गया। मरियम वहीं दरवाजे के करीब खड़ी अपने वजूद को समेटने की नाकाम कोशिश कर रही थी। दिल जैसे सीने में मचल रहा हो और आंखों से गिरने वाले आंसू हर ख्वाब की मौत का मातम कर रहे थे। वो बुझे कदमों के साथ वापस लौट आई थी। कमरे की फिजा में खामोशी जम कर बैठ गई थी। मरियम दरवाज़ा बंद करके आहिस्तगी से अंदर दाखिल हुई। चेहरे पर गहरे कर्ब और आंखों में अज जले ख्वाबों की राख थी। अभी वो सोफे की तरफ बढ़ी ही थी कि अचानक दरवाज़ा एक जोरदार धाड़ के साथ खुला। वो चौंक कर पलटी। वजदान खानजादा दरवाजे पर खड़ा था। चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था, आंखों में जैसे तूफान सिमट आए हों। किस खुशी में तुम उस लड़के से मिल रही हो? वो धाड़ा। आवाज में गरूर, गुस्सा और तपिश थी। पता चला है मुझे, वो तुम्हारा मंगेतर था। दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा लड़की? मरियम रोती लरसती अपनी जगह से खड़ी हुई। उसका रंग जर्द पड़ चुका था, लब कांपने लगे, दिल की धड़कन तेज हो गई। वो धीरे से बोली, मुझे इल्म नहीं था कि आपको बुरा लगेगा। वो वाकई डर गई थी। बुरा लगेगा? वजदान उसकी जानिब कदम बढ़ाता आया। तुम्हें लगता है मैं कोई तमाशा देखने आया हूं? मैं तुम्हारा शौहर हूं। बुरा मुझे नहीं, तुम्हें लगना चाहिए था कि तुम क्या कर रही हो। मरियम सहम कर पीछे हटी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सच कह रही हूं, मैं दोबारा बिलाल से नहीं मिलूंगी। वो डर गई थी। वजदान की आंखों में गुस्सा तेज तर हो गया। अगर अब तुमने एक कदम भी पीछे लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उसे घूरते हुए लपका और उसे बाजू से खींचकर अपनी तरफ किया। मरियम तवाजुन खो बैठी और सीधी उसके सीने से आ लगी। वजदान का चेहरा उसके बिल्कुल करीब था, सांसों में गुस्से की हिद्दत थी। क्या पता चल रहा है मुझे? उसकी आवाज अब गौसीली सरगोशी में बदल चुकी थी। तुम अपनी माँ से बोल रही थी कि मुझसे तलाक लेना चाहती हो। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा? मरियम की आंखें खौफ से फैल गई। उसके लब सिले हुए थे, वो कुछ बोल नहीं पाई थी। मरियम खानजादा, वो दांत पीसते बोला, मैं तुम पर वो मोहर सख्त करूंगा जो तुम्हें उम्र भर किसी और के बारे में सोचने से पहले 1000 बार मरने पर मजबूर कर देगी। तुम बीवी हो मेरी और रहोगी, चाहे तुम्हारा दिल माने या ना माने। मरियम के वजूद से जैसे जान निकलती जा रही थी। आंसू रुखसारों पर बहते बहते गर्दन तक जा पहुंचे थे। उसने हौले से सर झुका लिया, एक लफ्ज भी ना कहा। वजदान ने उसे थोड़ा पीछे किया और उसकी आंखों में झांक कर धीरे मगर सख्त लहजे में कहा, अब ये बात हमेशा याद रखना, अगर मेरे होते तुमने किसी और का नाम लिया तो तुम्हें वो नाम याद दिलाने के लिए मुझे किसी हद तक जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा, समझी तुम? ये कहते ही वो रुका नहीं था, बल्कि उसको लिए बिस्तर की तरफ बढ़ गया। वो मछली रोई थी, लेकिन उसको परवाह नहीं थी। वो अपनी मनमानी करके ही पीछे हटा। वो उसे रोन चुका था। जिद में अंधा होकर वो हासिल कर गया था उसे।
लाउंज में गहरी खामोशी छाई थी। हर चेहरा सवालों से भरा हुआ, मगर लब बंद थे। सजे संवरे हॉल में जैसे वक्त थम सा गया हो। कमरे के बीच में ज़ेबुन्निसा बेगम धीमी सिसकियों के साथ बैठी थी। उनके हाथ कांप रहे थे और आंखें आंसुओं से लबरेज थी। अचानक वो खुद पर काबू ना रख सकी और रोते हुए बोल उठी, इसीलिए मना किया था बाबा साहब, इसीलिए कहा था कि मेरी बेटी की शादी इस खानदान में ना करें। ऊपर वो बच्ची रो रो कर बुरा हाल कर बैठी है, दरवाजा भी नहीं खोल रही। अपने पोते से पूछे क्या सलूक किया है उसने मेरी बेटी के साथ। कमरे में बैठे सबकी निगाहें एकदम वजदान खानजादा पर मरकूज हो गई, जो कदरे सुकून से सोफे पर बैठा था। उसने आहिस्तगी से सर उठाया, अपने दाजी की तरफ देखा, फिर नपे तुले अल्फाज में बोला, रिश्ता कायम कर लिया है मैंने, बीवी है मेरी, और जो कुछ भी है वो मेरा और उसका ज़ाती मामला है। रही बात दरवाज़ा खोलने की तो वो मेरा मसला है, आप बेफिक्र रहें। कमरे में एकदम सांसें रुक गईं। फैसल खानजादा की बीवी ने सुना तो हैरत से लबों पर हाथ रख लिया। जमान खानजादा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। फुरकान साहब अलबत्ता वजदान के तेवर देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दबाने लगे, जैसे वो उसकी जिद और जिद पर खड़ी हुई खुददारी से महसूस हो रहे हों। लेकिन जमान खानजादा अपने गुस्से पर काबू ना रख सके। क्या हरकत की है तुमने वजदान? निकाह हुआ है, रुखसती नहीं। पहले रस्म पूरी होने देते, फिर जो चाहे करते। ये क्या तरीका है? वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसने बराह रास्त अपने बाप की आंखों में आंखें डालकर कहा, बस बहुत हो गया। ताऊ जान ने शायद अपनी बीवी को काबू ना किया हो, मगर मुझे मेरी बीवी को काबू करना आता है। मैं अपनी हुदूद जानता हूं और उसे अपनी हद बताना भी जानता हूं। खबरदार जो आइंदा किसी ने हमारे मामलात में दखल अंदाजी की। ये मेरे और मेरी बीवी के दरमियान का रिश्ता है। कोई दरवाज़ा खुले या बंद रहे, उसकी चाबी सिर्फ मेरे हाथ में है। वो अपनी बात मुकम्मल करते किसी का चेहरा देखे बगैर पलटा और तेज कदमों से लाउंज से बाहर निकल गया। पीछे सिर्फ सन्नाटा रह गया था। रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था। हवेली की वसत में सिर्फ खामोशी का बसेरा था। चांद की मध्यम रोशनी खिड़की के पर्दों से छन कर कमरे में उतर रही थी और मरियम नरम बिस्तर पर गहरी नींद में महव थी। उसकी पेशानी पर बिखरे बाल, धीमी सांसों की रवानी और सुकून भरा चेहरा, जैसे वक्त थम सा गया हो। दरवाज़ा हौले से खुला, डुप्लीकेट चाबी की मामूली सी आवाज़, और फिर दरवाज़ा धीरे से बंद हुआ। वजदान खानजादा आहिस्ता कदमों से अंदर आया। उसके चेहरे पर आज गुस्सा नहीं, सख्ती नहीं, बस एक अजीब सी नरमी और तासुब झलक रहा था। वो खामोशी से उसके करीब आकर लेट गया। उसकी मौजूदगी के एहसास से मरियम की नींद टूट गई। आंखें खुली तो वो एक झटके से उठकर पीछे हटने लगी। वजदान, उसकी आवाज़ लरज रही थी, आंखों में खौफ था, चेहरा जर्द। आप यहाँ? खुदा के लिए मेरे साथ कुछ गलत मत कीजिएगा। मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं अब बिलाल से नहीं मिलूंगी, कभी नहीं, प्लीज़। वो लरजते हाथों से खुद को चादर में समेटने लगी। आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। वजदान ने फौरन उसका हाथ थामा, मजबूती से नहीं, नरमी से। उसके चेहरे के करीब आया और धीरे से उसके आंसू साफ किए। श्श मरियम। उसकी आवाज़ में ऐसा सुकून था जैसे किसी तूफान के बाद साहिल की हवा में। मैं माफ़ी मांगने आया हूँ। जो रवैया मैंने तुम्हारे साथ इख्तियार किया, जो गुस्सा, जो सख्ती, वो सब गलत था। वो हैरान होकर उसकी काया पलट को देख रही थी। मरियम हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। उसके अल्फाज सच्चे लग रहे थे, मगर एतबार करने का हौसला बाकी ना रहा था। वो धीरे से बोली, मैं क्या माफ़ करूं आपको? वजदान ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और आहिस्तगी से उसके माथे पर बोसा दिया। प्लीज़ माफ़ कर दो। मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ, अपना बनाना चाहता हूँ, छीन कर नहीं, अपना कर। मैं गुस्सा हो गया था। मैं अपनी बीवी को किसी के साथ बांट नहीं सकता। प्लीज़ इस बात को समझो। वो धीरे धीरे उसकी और करीब आया, उसे अपने वजूद के हिसार में ले लिया। मरियम का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, मगर वजदान के अंदाज में ऐसी नरमी, ऐसा एतमाद था कि वो सहमे हुए अंदाज में उसकी आगोश में सिमटने लगी। एक घबराहट, एक मजबूरी, मगर उसके साथ साथ एक खामोशी सी खुशी भी।
میں نہیں جانتی ہماری زندگی کیسی ہوگی، وہ دھیرے سے بولی، مگر میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس رشتے کو قبول کرتی ہوں۔ شاید ایک دن ہم بھی خوش ہو جائیں، شاید ایک دن میری محبت، میرا سکون تم میں مل جائے۔ وجدان نے اسے اور قریب کیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری ہر آنکھ کا آنسو میری آنکھ میں چبھتا رہے گا، تمہارے حصے کا سکون اب میری ذمہ داری ہے۔ چاند کی کرنیں اب ان کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ باہر خاموشی تھی، مگر اندر دلوں میں ایک نیا آغاز، ایک نیا وعدہ اور ایک ایسا رشتہ جس نے دکھ سے جنم لیا تھا مگر محبت سے سنورنے لگا تھا۔ وجدان ایک سمجھدار شخص تھا، اس کو رشتے میں توازن رکھنا آتا تھا، پر وہ جذباتی ہو گیا تھا۔ لیکن اب وہ جان رہا تھا کہ بیویوں کو پیار سے سمجھایا جاتا تھا، غصہ صرف رشتے توڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔